Hello students of 9th and 10th grades. So as you are aware that we were doing notice writing and today we will start with email writing. So before commencing, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19, a promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus, a promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start today's work. So this is your assignment number 3, email writing. So today we will discuss some important tips and points that can make your email writing impressive. Okay, and you will get full 5 marks in email writing. So you have to write this work on your Fear notebook. So let's read email writing. Email, also known as electronic mail, is a method of exchanging digital messages across the internet or other computer networks. So what's the full form of email? Electronic mail. Okay. And what is electronic mail? This is a method by which we exchange messages. What kind of messages? Digital messages across internet or other computer networks. So through email we exchange digital messages via internet or computer networks. It is the quickest way to communicate in writing. So email is the quickest way to communicate in writing. Emails can be grouped into 3 categories. So now emails are classified into 3 categories. What are these 3 categories? Formal, semi-formal and informal. So there are many formal emails, semi-formal emails and informal emails. So first is formal emails. Formal emails are sent to people whom the writer does not know. So अब जिनको राइटर लिखने वाला नहीं जानता उनको हम कौन सी ईमेल फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं? Formal emails. And semi-formal or less formal emails are usually sent to colleagues or people whom the writer knows but not very close to them. Now semi-formal और formal, less formal जो email होते हैं ये उनको send किए जाते हैं जिनको writer जानता तो है but ज़्यादा उनके close नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हिज कॉलीग्स, उसके साथ में जो वर्क करने वाले लोग हो गए उनको वो सेमी फॉर्मल ईमेल सेंड करेगा. इनफॉर्मल ईमेल्स आर सेंड टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड क्लोज एक्वेंटेंसेस. अब जो इनफॉर्मल ईमेल्स हैं वो आपके क्लोज जो रिलेटिव्स हो गए उनको आप सेंड करोगे. ठीक है. सो ईमेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल ईमेल्स उनको भेजे जाते हैं जिनको आप पर्सनली नहीं जानते. ठीक है, जिनको आप पहली बार बिजनेस के सिलसिले में फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हो. ठीक है. सेमी फॉर्मल उनको सेंड किए जाते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत जानते तो हो बट उनके इतने क्लोज नहीं हो. इनफॉर्मल लेटर्स, ईमेल्स उनको सेंड किए जाएंगे जिनको आप अच्छे से जानते हो, जिनकी आप क्लोज भी हो. ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ फॉर्मल ईमेल. फॉर्मल ईमेल की स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है. ठीक है. सैल्यूटेशन मतलब उसका जो स्टार्टिंग में कैसे उनको आप रिप्रेजेंट करोगे कि आप किसको बोल रहे हो. ठीक है. एंड लीव टेकिंग कि आप बाद में उसमें एंड में क्या लिखोगे. ठीक है. सैल्यूटेशन में क्या आएगा? डियर सर, मैडम, डियर मिस्टर दीक्षित या फिर डियर डॉक्टर दीक्षित, डियर मिसेस राव या डियर मिस राव. ओके. फॉर्मल लेटर में आप इस तरह से स्टार्टिंग करोगे. और लीव टेकिंग जब आपने एंडिंग करनी है तो कैसे करोगे? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. ओके. दिस इज द वे टू एंड अ फॉर्मल ईमेल. नाउ सेमी फॉर्मल ईमेल. सेमी फॉर्मल ईमेल को आप कैसे स्टार्ट करोगे, उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, सैल्यूटेशन कैसे करोगे? डियर जॉन. ठीक है. अब ये सेमी फॉर्मल है मतलब आप इन लोगों को जानते हो तो आप इसको डियर बोल सकते हो. लीव टेकिंग, थैंक्स, बेस्ट रिगार्ड्स, योर्स.
ठीक है, इस तरह से आप एंडिंग कर सकते हो। इनफॉर्मल ईमेल जो आप रिलेटिव्स को सेंड करोगे, अब यहाँ पे आप सीधे भी स्टार्ट कर सकते हो, हेलो रीना, हाय रवि, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, लीव टेकिंग में बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। So these are some formats. Now notes. While writing formal emails, do not use contractions. So when you're writing a formal email, you should avoid writing contractions. आपको contraction use नहीं करनी जब आप formal emails लिख रहे हो, such as am, didn't, you'll, etc. ये आपको नहीं use करनी। For example, formal में आप क्या लिख सकते हो? I am writing to ask you for some information. इनफॉर्मल में आप कैसे लिख सकते हो? आई एम राइटिंग टू आस्क यू फॉर सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इन इनफॉर्मल ईमेल, बट यू कैन नॉट यूज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इन अ फॉर्मल ईमेल। ठीक है, फॉर्मल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज़ करनी, पूरा लिखना है आई एम। इनफॉर्मल में आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो और लिख सकते हो एम। ठीक है, फॉर्मल में आप क्या लिखोगे? आई एम राइटिंग टू आस्क यू फॉर सम इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल में आप क्या लिखोगे? आई एम राइटिंग टू आस्क यू फॉर सम इंफॉर्मेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल vocabulary. Now we will follow different vocabulary for both formal and informal emails. Formal emails use different vocabulary from that of informal emails, क्योंकि formal की vocabulary informal email से different होगी। So for formal you can say thank you, और informal में आप क्या लिख सकते हो? thanks. फॉर्मल आपने किसको सेंड करना है? जिनको आप पर्सनली नहीं जानते। इनफॉर्मल जिनको आप जानते हो। तो जिनको नहीं जानते उनके साथ आपको ज़्यादा पोलाइट बनना है, और इनफॉर्मल में आप जानते हो तो उनके सामने ज़्यादा पोलाइट बनने की आपको नीड नहीं है। सो फॉर्मल में आप लिखोगे पूरा थैंक यू, इनफॉर्मल में थैंक्स। फॉर्मल में लिखोगे आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ फॉर, अगर आपने किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी है तो क्या लिखोगे? आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ फॉर। ठीक है, इनफॉर्मल में आप क्या लिख सकते हो? सॉरी फॉर, कि किसी चीज़ की माफ़ी करनी है, मांगनी है तो बोलोगे सॉरी फॉर दिस। मूविंग ऑन, फॉर्मल में आप क्या लिख सकते हो? आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू, कि मैं इस बात की प्रशंसा करूँगा अगर आपने ऐसा किया। ठीक है, इनफॉर्मल में आप सीधा किसी से पूछ सकते हो कैन यू डू दिस फॉर मी, है ना, आप सीधा बोल सकते हो जिसको आप जानते हो कि कैन यू डू दिस फॉर मी। बट फॉर्मल में आपको पूरा बोलना पड़ेगा पोलाइटली, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू वुड हेल्प मी। ओके, फॉर्मल में बोल सकते हो वुड यू हैपन टू नो, कि क्या आपको इसके बारे में पता चला। तो इनफॉर्मल में आप सीधा पूछ सकते हो डू यू नो, है ना। फॉर्मल में आप पूछ सकते हो अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू, अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या फिर नहीं आ सकता कहीं पे, है ना, अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू कम। और इनफॉर्मल में आप सीधा भी बोल सकते हो आई कैंट कम। ठीक है, इनफॉर्मल में आप जिनको जानते हो उनके साथ आप सीधे बात कर सकते हो आई कैंट कम। फॉर्मल में आप बोल सकते हो आई वुड रैदर नॉट डू दिस, कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करना है ना, तो आप बोलोगे पोलाइटली आई वुड रैदर नॉट डू दिस। इनफॉर्मल में आपको क्या बोलोगे? आई डोंट वॉन्ट टू। ठीक है, वी विल राइट अ टी हियर, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। इनफॉर्मल में आप क्या बोलोगे? कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आप सीधे बोल सकते हो, सीधे मना कर सकते हो इनफॉर्मल में, फॉर्मल में नहीं कर सकते। अब लास्ट में क्या है? दे विल बी अटेंडिंग मीटिंग टुमारो। ठीक है, और इनफॉर्मल में आप क्या सकते हो? दे विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। यहाँ पे आप लिखोगे दे विल और यहाँ पे आप लिखोगे देल, क्योंकि इनफॉर्मल में आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, फॉर्मल में यू कैन नॉट यूज़ अ कॉन्ट्रैक्शन, आपको पूरा लिखना पड़ेगा दे विल। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल विद मार्किंग स्कीम। अब ईमेल लिखना कैसे है, उसका फॉर्मेट आपको कौन सा फॉलो करना है। ठीक है, यू विल फॉलो दिस फॉर्मेट व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल। सो व्हाट इज दैट फॉर्मेट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टू मतलब किसको आप भेज रहे हो ईमेल। ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom you are sending your email. Then you will write the subject. So what is the subject? Subject can be name of the event. ओके, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसका नेम आप सब्जेक्ट में डालोगे। ठीक है, दिस विल कंट्रीब्यूट टू 1 मार्क, दिस विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू 1 मार्क, हाफ मार्क। ठीक है, बोथ ऑफ दिस
1 मार्क। सैल्यूटेशन, नाउ यहाँ पे आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, डियर सर, मैडम, एक्सेट्रा, जो भी हमने पीछे सैल्यूटेशंस पढ़ी थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल, सभी के लिए हमने अलग अलग सैल्यूटेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। सो यू विल यूज़ दी सैल्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ईमेल। अगर फॉर्मल है तो डियर से स्टार्ट कर सकते हो, डियर सर, डियर मैडम से, है ना। अगर इनफॉर्मल है तो हाय से, हाय हेलो उससे स्टार्ट कर सकते हो कि हेलो रवि, हाय रीना, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। नाउ ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस में आप जिसके लिए सेंड कर रहे हो उसको एड्रेस करके बताओगे कि कौन सा इवेंट हो रहा है और उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आप एक बॉडी फॉर्म करोगे जो कि 2 मार्क्स की होगी, तो बॉडी में पूरी वो डिटेल्स होनी चाहिए कि कब हो रहा है वो इवेंट, उसकी टाइमिंग क्या है, कौन कौन इन्वाइटीज़ है, क्या क्या स्पेशल होगा, ठीक है, वो सारा आपने बॉडी में लिखना है। फिर आपने लिखना है क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। आफ्टर दिस यू विल राइट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, योर एड्रेस, आपका एड्रेस, योर एड्रेस, नेम भी हो सकता है उसमें, आपके एड्रेस में आप क्या लिखोगे, यू विल मेंशन योर नेम एंड यू विल मेंशन योर रैंक, कि आपका वर्क क्या है, पोजीशन क्या है आपकी, ठीक है। तो यू विल मेंशन योर नेम एंड रैंक एट द एंड ऑफ द ईमेल। So I hope the format of email writing is easy for you. So all the very best, and don't forget to write this work on your notebooks. Okay, all the very best, students.